Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we are going to do our first lesson of first year English, the book that has been changed now. And earlier on, there used to be a lesson at the place of this lesson, Pakistan Zindabad, but now they have a different lesson. And in fact, the title of this lesson have been kept Democratic Citizenship. So this is very important to understand what does the writer mean by democratic citizenship. You can see in the picture that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, the first Governor General of Pakistan, is making a speech. And actually this lesson is a speech that is taken from a part of his speech, in fact, that is taken from Quaid-e-Azam's speech, the presidential address that he made to the Constituent Assembly on 11 August 1947. I will not read this lesson. In fact, I will simply help you focus upon the most important vocabulary items and also the most important concepts or the ideas that actually have been propounded or laid down by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in this speech. So let's begin. Well, presidential address, as you know, speech made by the president. So it was a speech. And Constituent Assembly means the assembly that had to make the constitution. Assembly to make the constitution. Constitution means आइन, किसी भी मुल्क का आइन या कानून. The purpose of this assembly was to make the first constitution of Pakistan. That is why this assembly was called Constituent Assembly. Consequential assertions. It was one of the most consequential assertions. Assertion means also a kind of speech or an idea that actually has been given great importance or stress. It was one of the most consequential, माना बहुत ही नतीजा खेज और बहुत ही important, यानी कि ये एक तकरीर थी in the history of South Asia. And Quaid, it also testifies. Testify means tasdeeq करना, किसी चीज को साबित करना. So it testifies, this speech testifies Quaid-e-Azam's विजन ऑफ पाकिस्तान, के Quaid-e-Azam जो थे वो क्या चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एज ए कंट्री जो है वो किस किस्म का मुल्क बनकर जो है वो सामने आए. And it reminds about the teachings of the Holy Prophet, last Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, that all the human beings are equal in the eyes of God. तमाम इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर हैं. The best among you is the one who is the most pious of you. तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो कि तकवा के लिहाज से लोगों के साथ कितना अच्छा है. So here is an excerpt. Excerpt का मतलब होता है कोई छोटा सा टुकड़ा किसी भी लंबी piece of writing का, किसी भी तहरीर का छोटा सा टुकड़ा. So here is an excerpt from this memorable speech. So you see that कैसे speech शुरू हो रही है. Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity. तो cordially means दिल की गहराइयों से और पूरे खुलूस दिल के साथ. utmost means मुकम्मल sincerity के साथ. utmost का मतलब होता है complete या मुकम्मल sincerity के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. For the honor you have conferred upon me. जो आपने मुझे इज्जत दी है. confer का मतलब होता है देना, अता करना. So the honor, the respect that you have given me, I am deeply thankful to you for that. और कहता है कि I hope that with your support and your cooperation we shall make this Constituent Assembly an example. कि आप लोगों के support से हम इस Constituent Assembly को जो है दुनिया के लिए एक मिसाल बनाएंगे. Okay, students, in the later part of the speech, Quaid-e-Azam points out that what are the two most important functions of the Constituent Assembly. कि ये कानून साज असेंबली जो है जिसने कानून बनाना है, इसके दो अहम फंक्शंस कौन कौन से हैं, या फंक्शन मीन्स यहाँ पर फ़राइज़, उसके दो अहम फ़राइज़ उसके नज़दीक कौन कौन से हैं. नंबर वन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि इन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. और नंबर टू, टू फंक्शन एज ए सॉवरेन बॉडी. सॉवरेन बॉडी का मतलब होता है खुद मुख्तार इदारा या खुद मुख्तार जो है इंस्टीट्यूशन, आज़ाद, जो कि जिसके ऊपर कोई और जो है अपने फ़ैसले नहीं नाफिज कर सकता या थोप नहीं सकता. तो यहाँ पर जो कह रहा है कि आपने जो है फंक्शन करना है, आपने फ़रीज़ा अदा करना है एक सॉवरेन बॉडी का, एक खुद मुख्तार इंस्टीट्यूशन का. एंड फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, बतौर फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान के. लेजिस्लेचर का मतलब भी होता है कानून बनाने वाला इदारा. तो यू हैव टू फंक्शन एज ए सॉवरेन बॉडी एंड फेडरल, विफाकी, फेडरल का मतलब विफाकी कानून बनाने वाला इदारा के तौर पर आपने पाकिस्तान के काम करना है.
अगेन सॉवरेन बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद मुख्तार इदारा, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज कंप्लीट पावर टू मेक इट्स डिसीजन। और लेजिस्लेचर का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव पावर टू मेक एंड चेंज लॉज। और लेजिस्लेटर भी एक लफ्ज होता है, उसमें ओ आर आ जाता है, तो वो उसका मतलब है कि किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर। तो जो मेंबर होता है उसको लेजिस्लेटर कहा जाता है, और जो इदारा होता है कानून बनाने वाला, वो लेजिस्लेचर कहलाता है। अनप्रेसिडेंटेड, सो हियर अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अनपैरेलल्ड, और जिसकी मिसाल जो है वो हिस्ट्री में ना मिलती हो। तो कहता है कि द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली इज एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, एक ऐसा वाक़या है जिसकी मिसाल जो है तारीख में नहीं मिलती है। एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, और ये एक बहुत बड़े इनकलाब का नतीजा है। ह्यूज रेवोल्यूशन, साइक्लोनिक का मतलब है बहुत ही बड़ा, यानी कि जो है एक रेवोल्यूशन जो कि आया, इनकलाब आया, विच हैज़ ब्रॉट अबाउट, जो कि सबब बना। ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है सबब बना, दैट कॉज टू हैपन द प्लान ऑफ क्रिएटिंग टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसकी वजह से दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, दो सॉवरेन डोमिनियंस जो हैं, यानी कि फ्री स्टेट्स जो हैं, वो बन गई साउथ एशिया के अंदर। एंड उन दो स्टेट्स को जो है आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान उसके नतीजे में बने। एंड दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब है यहाँ पर वो लोग जो कि स्टेट्स के अंदर रहते हैं वो उसके इनहेबिटेंट्स कहलाते हैं। सो द पीपल हु लिव इन अ स्टेट आर इट्स इनहेबिटेंट्स। तो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स टाइटैनिक, और टाइटैनिक का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर है वेरी बिग और वेरी ह्यूज। तो इट वाज अ टाइटैनिक प्लान ऑफ द डेस्टिनी, यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी तकदीर का एक टाइटैनिक प्लान था कि ये दो मुल्क जो हैं वजूद में आए, और ये एक अनपैरेलल्ड किस्म का वाक़या था। अनपैरेलल्ड का मतलब अगेन यही है, अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी मिसाल जो है तारीख में ना मिलती हो। तो अनपैरेलल्ड और अनप्रेसिडेंटेड जो है एक ही किस्म के वर्ड्स हो गए यहाँ पर। डीलिंग विद अवर फर्स्ट फंक्शन, के जहाँ तक हमारा जो पहला फंक्शन है, और पहला फंक्शन आपको मालूम है वो क्या है कायद-ए-आज़म के नज़दीक, कि हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्रिएट करना है। सो एज़ फार एज़ अवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कंसर्न, तो कह रहे हैं जहाँ तक हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें जो है और वो जो है उसको, उसकी अहमियत को भी वाज़ेह करते हैं यहाँ पर, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फोरमोस्ट थिंग है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। अब ये भी, यानी कि जब आप किसी भी बात की अहमियत को वाज़ेह करना चाहते हैं तो आप कहते हैं द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, कि पहली और सबसे ज़्यादा अहम बात, आई वुड लाइक टू एम्फिसाइज, जिसके ऊपर मैं जोर देना चाहता हूँ। एम्फिसाइज का मतलब है यहाँ पर जोर देना, और वो क्या है, दैट यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी, कि आप जो है वो फ्री और इंडिपेंडेंट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन हैं। आप एक ऐसा इदारा है जो जिसके ऊपर किसी का जोर नहीं चल सकता। आपने बैठना है, अपने फहमो फरासत को, अपनी विजडम को आपने यूज़ करना है, ताकि आप एक बेहतरीन आइन जो है वो पाकिस्तान की आवाम को दे सकें। एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, ये बात जो है वो उनको याद दिला रहा है कि आप जो हैं, आपके पास तकरीबन वो सारी पावर्स हैं जो कि एक सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेचर के पास जो है होनी चाहिए। लिहाजा यू हैव टू वर्क विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही वो आगे कह रहा है कि इट देयरफॉर प्लेसेस ऑन यू द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लेसेस का मतलब है आयद करना, लागू करना, इम्पोज करना। तो लिहाजा ये जो फैक्ट है कि आप सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, इट इम्पोजेज ऑन यू ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आयद करता है। एज टू का मतलब होता है अबाउट, के मुतल्लिक, और किस चीज़ के मुतल्लिक, हाउ यू शुड टेक योर डिसीजंस, कि आपने अपने डिसीजंस आपने कैसे लेने हैं। तो जितनी ज़्यादा आज़ादी होती है उसी आज़ादी के साथ उसी हिसाब से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और अगर आज़ाद लोग रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव ना करें तो बहुत जल्द उनसे उनकी आज़ादी छिन जाती है और लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो आगे कहते हैं जो पहली ड्यूटी है किसी भी गवर्नमेंट की या स्टेट की, वो क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि आपने जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है ताकि लोगों की जान, माल और यानी कि उनके जो अकायद हैं, रिलीजियस फ्रीडम जो है उसकी हिफाजत हो। So you have to give them the protection of property,
लाइफ एंड रिलीजन। ये एक बेसिक फरीजा है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट का, कायदे आजम के नजदीक। एंड और यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, कि उसके सब्जेक्ट्स जो हैं यानी कि वो लोग जो कि उसके अंदर रहते हैं। तो अब यहाँ देखें कि सब्जेक्ट्स और इनहेबिटेंट्स का मतलब एक ही हो गया, कि वो लोग जो कि रहते हैं उस स्टेट के अंदर वो मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड अपने आप को महफूज करें। स्टेट जो है उनको इतना ज़्यादा जो है सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दे, तो तभी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। द सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी, और दूसरी चीज जो कि मेरे जहन में आती है, अकर्स टू मी, देखें इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, दैट कम्स टू माई माइंड। द सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी, दैट मीन्स द सेकेंड थिंग दैट कम्स टू माई माइंड। जो दूसरी चीज मेरे जहन में आती है वो क्या है, इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेज, एक बहुत बड़ी जो है वो कर्स या लानत या एक बुराई, ईवल या बैड थिंग फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग, और वो क्या है, ब्रिबरी। ब्रिबरी का मतलब है मनी और फेवर गिवन टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स कंडक्ट, कि जब आप किसी आदमी को जो है पैसे देते हैं या कोई उसके ऊपर मेहरबानी करते हैं किसी भी लिहाज से, और उसके ज़रिए से जो है आप उसके फैसले के ऊपर असरअंदाज होते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में या उस पर्टिकुलर इदारे में जहाँ पर कि वो बैठा हुआ है और उसने कोई डिसीजन लेना है, तो ये जो है ब्रिबरी कहलाएगी, जिसे हम उर्दू में रिश्वत कहते हैं। एंड यानी कि वो कहता है कि दिस इज़ अ वेरी बिग कर्स, ये बहुत बड़ी कर्स है, और करप्शन जो है ये बहुत बड़ी लानत है, दोनों चीज़ें जो हैं इंडिया के लिए। और हमें इसको जो है वी हैव टू पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड, हमें इसको जो है आयरन हैंड से यानी कि आहिनी हाथों से इसको जो है इससे निमटना होगा। पुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, वी हैव टू फिनिश इट, वी हैव टू अपरूट इट, हमें उसको अपरूट करना होगा, और वी हैव टू एक्सटर्मिनेट इट, हमें उसे एक्सटर्मिनेट करना होगा विद आयरन हैंड्स। एंड यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं मुनासिब इकदाम करेंगे। एडिक्वेट का मतलब है इनफ या सफिशिएंट, कि आप काफ़ी इकदाम करेंगे, एक्शन लेंगे। मेजर्स का मतलब यहाँ पर एक्शन या मेजर लेना, और इस बुराई को जो है ख़त्म करने के लिए। और दूसरी जो कर्ज जो कि जिससे कि हम लोग जिसका सामना कर रहे हैं वो है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है इलीगल वे में किसी भी मुल्क के अंदर बिजनेस करना, यानी कि वो रूल्स और वो जो हैं रेगुलेशंस जो कि कोई स्टेट जो है वो लागू करती है कि इनके तहत आपका बिजनेस होना चाहिए, आप उसके खिलाफ जब बिजनेस करते हैं तो आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ एन अनदर कर्स, ये भी एक बहुत बड़ी कर्स है, ईवल है। और वो यहाँ पर वो कह रहा है कि दिस इज़ अ रियल बिग मॉन्स्टर, ये एक मॉन्स्टर है, एक बहुत बड़ी बला है। एंड यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर which today is a colossal crime, जो कि आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा क्राइम है। कॉलोसल का मतलब वेरी ह्यूज, वेरी बिग क्राइम। तो कह रहा है कि एक बहुत बड़ा क्राइम है आजकल के दौर में, आजकल की सोसाइटीज़ में, और ख़ास तौर पर हमारे जैसी डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस वाली सोसाइटी में। डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस का मतलब है बहुत ही बुरे हालात। सो वी आर अ सोसाइटी इन अ वेरी पुअर कंडीशन। और वो वक्त याद रखने के काबिल है स्टूडेंट्स, जबकि तकरीबन 80 लाख के करीब जो थे मुहाजिरीन वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, और तकरीबन इतने ही लोग जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा हलचल और बहुत ज़्यादा जो है एक अफरा तफरी का आलम था। लोग जो थे हिजरत के दौरान उनको कत्ल किया जा रहा था, लूटा जा रहा था। सो दे वर इन अ वेरी पुअर कंडीशन, और इस कंडीशन के अंदर ब्लैक मार्केटिंग करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना और स्टारवेशन क्रिएट कर देना। स्टारवेशन का मतलब है कि भूख और अफलास की कैफियत को क्रिएट कर देना, ताकि लोग जो हैं वो यानी कि आपके मुंह मांगे दामों पर जो है आपसे वो फूड ख़रीदें। तो इट वाज अ बिग क्राइम, और कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ईवल है जो कि किसी भी स्टेट को अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि किसी भी स्टेट की किसी भी चीज़ की जड़ें खोखली करना, अंडरमाइन करना, यानी कि मेक द फाउंडेशन वीक, किसी भी चीज़ की फाउंडेशन को वीक करना। एंटायर सिस्टम, मुकम्मल सिस्टम की फाउंडेशंस को ये वीक कर देता है। सो क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और फूड स्टफ जो है उसकी यूं समझे कि होलसेल स्टारवेशन हो जाती है, वो चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में कम हो जाती हैं। एंड यू हैव टू टैकल दिस बिग मॉन्स्टर विद आयरन हैंड्स एज वेल। आपको इस मॉन्स्टर को भी जो है बहुत ही सख्ती के साथ, सीवियरली मीन्स विद आयरन हैंड्स, आपको इसके साथ जो है वो डील करना है। ऑट टू का मतलब इट शुड, माना करना चाहिए। तो आई थिंक दे ऑट टू बी वेरी सीवियरली पनिश्ड, कि ये लोग जो कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं दे शुड बी वेरी
severely punished. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी मीन्स जो कि मेरे जहन में आती है, दैट सीम्स टू मी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है उसके हवाले से आप कहते हैं कि इट रियली स्ट्राइक्स मी, कि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अहम लगती है. और वो नेक्स्ट चीज़ जो कि कायदे-ए-आज़म को स्ट्राइक करती है वो क्या है? लिगेसी. लिगेसी मीन्स वो चीज़ें जो कि आपको विरसे में मिलती हैं, माजी से आपको मिली हुई होती हैं, आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, आपके फोर फादर्स देते हैं, या विरसे में पास्ट में वो चीज़ें चली आ रही होती हैं और अब आपको भी उनका सामना है. तो कह रहा है कि इट इज़ अ लिगेसी विच हैज़ बिन पास टू अस, जो कि हमें मिली है विरसे में, अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स गुड एंड बैड. और वो कौन सी चीज़ है? निपोटिज्म एंड जॉबरी. अच्छा, निपोटिज्म का मतलब है गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली और फ्रेंड्स, कि आप किसी अहम सरकारी ओहदे पर हैं और वहाँ पर आप नाजायज़ जो है आप फ़ायदा पहुँचाते हैं अपने फैमिली को, बड़े बड़ी जॉब्स देते हैं उनको, बड़े बड़े ओहदे देते हैं, ये देखे बगैर कि वो इसको डिज़र्व भी करते हैं या नहीं, और उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं. और जॉबरी का मतलब भी है कि पब्लिक ऑफिस को यूज़ करना अपने फ़ायदे के लिए. तो ये दोनों चीज़ें जिस कौम के अंदर होंगी वो कौम जो है कायद-ए-आज़म के नज़दीक कभी भी तरक्की नहीं कर सकती. तो लिहाजा कायद-ए-आज़म वार्न कर रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब, निपोटिज्म और जॉबरी जो है वो उसको आपने क्रश करना है रिलेंटलेसली मीन्स सीवियरली विद आयरन हैंड्स. और उसके बाद वो कहते हैं जनाब के मैं जो हूँ, अगर मेरे ऊपर किसी ने कोई इस किस्म का जो है असर डाला कि मैं उसको कोई ज़ाती फ़ायदा पहुँचा सकूँ, तो आई विल नॉट टॉलरेट इट, मैं इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा. एनी इन्फ्लुएंस दैट इज़ ब्रॉट टू बियर अपॉन मी, जो कि मेरे ऊपर डाला जाएगा. ब्रॉट टू बियर का मतलब एग्जर्ट करना या डालना किसी के ऊपर कोई असर. तो आई विल नॉट टॉलरेट any nepotism or jobbery or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हमने जो है वाकई एक बड़ी कौम बनना है तो हमें वी हैव टू वर्क होली एंड सोलैली, हमें मुकम्मल तौर पे, होली एंड सोलैली का मतलब मुकम्मल तौर पर पूरे दिल की गहराइयों से मुकम्मल फोकस के साथ जो है हमें कंसंट्रेट करना होगा ऑन द वेल बीइंग ऑफ द पीपल. हमें मासिस माने आम जो आवाम है, उनकी वेल बीइंग, उनकी वेलफेयर, उनकी भलाई, उनकी अच्छी एजुकेशन हो, उनकी सेहत अच्छी हो, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हों और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हों. तो इस चीज़ के ऊपर हमने जो है काम करना है. इफ़ यू विल वर्क इन कोऑपरेशन, तो कह रहा है कि अगर आप मिलजुल कर काम करते हैं. बरिंग द हैचेट का मतलब अपने जो डिफरेंसेस हैं आपके ज़ात पात और जो है उसके अलावा जो है बहुत सारे यानी कि जो डिफरेंसेस हैं या दुश्मनियां हैं आपस की, उनको अगर आप जो है बरी करते हुए जो है आप बरी द हैचेट का मतलब, हैचेट कहते हैं कुल्हाड़ी को, और बरी द हैचेट का मतलब फॉरगेटिंग और पुटिंग एन एंड टू पर्सनल डिफरेंसेस और एनमिटीज. अब पर्सनल डिफरेंसेस और एनमिटीज को जो है ख़त्म करना जो है, तो कहते हैं आप अगर ऐसा करेंगे तो यू आर बाउंड टू सक्सीड, तो आप जो है फिर यू विल सर्टेनली सक्सीड, आप यकीनी तौर पर कामयाब होंगे. उसके बाद कायद-ए-आज़म कहते हैं कि आपको जो है ये याद रखना चाहिए कि आपकी रिलीजन, क्रीड, ज़ात और बरादरियाँ और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बाद की बातें हैं, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान जिसके कि आप मेंबर हैं और उसका जो लॉ है वो पहले आपके ऊपर आएगा. लिहाजा क्या है कि विद इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ये जो है जो राइट्स हैं और प्रिविलेजेस हैं यानी कि स्पेशल राइट्स होते हैं या ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सबके एक जैसे हैं और सब ने जो है उस आइन के मुताबिक जो है उनको अदा करना है. और वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब एज टाइम गोज बाय, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ये सारी एंगुलरिटीज़ जो हैं हमारी, वो एंगुलरिटीज़ का मतलब शार्प पॉइंट्स जो कि हमें एक दूसरे, हम समझते हैं कि हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम्युनिटी से ख़त्म होते जाएंगे. हमारी सोसाइटी जो है वो एक हो जाएगी अगर हम इस किस्म के लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने में और क्रिएट करने में कामयाब हो गए. नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन. सब्जेक्शन का मतलब गुलामी.
तो कोई भी कौम किसी कौम को जो है सब्जेक्शन में नहीं रख सकती, और वो कहता है कि लिहाजा हमें इससे सबक लेना है. सो यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड. आप किसी भी रिलीजन से, कास्ट से यानी कि ज़ात से या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हो. दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट. तो उसका स्टेट के बिजनेस से जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है. स्टेट का काम क्या है? What is the business of the state? जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है. सो बिजनेस ऑफ द स्टेट इज सिंपली कि उसने लोगों को जो है जान, माल, प्रॉपर्टी और रिलीजियस फ्रीडम की जो है गारंटी देनी है और उनको प्रोटेक्ट करना है, मुकम्मल प्रोटेक्शन देनी है. सिर्फ इतना सा काम है स्टेट का. स्टेट का काम अफराद के ज़ाती मामलात के अंदर जो है दखल देना नहीं है कि वो स्टेट की मर्जी के मुताबिक चलें. लिहाजा क्या है कि ये चीज़ें जो हैं दे हैव नथिंग टू डू, योर क्रीड, योर कास्ट एंड योर रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट. उसका बिजनेस, स्टेट के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है. वी आर स्टार्टिंग इन द डेज कि हम एक ऐसे दौर को शुरू कर रहे हैं या एक ऐसे दौर से अपनी इस नई तारीख का आगाज़ कर रहे हैं जबकि हमारे बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अदम मुसावात या डिफरेंसेस, हमारे बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, हम सब बराबर हैं. तो वो कह रहा है कि लिहाजा एक ये जो है हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि होना चाहिए. फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल. फंडामेंटल प्रिंसिपल मींस बुनियादी असूल, बेसिक प्रिंसिपल या रूल, दैट वी आर ऑल सिटीजन एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट. वी ऑल आर इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट. हम एक ही स्टेट के इक्वल सिटीजन्स हैं. और उसके बाद स्टूडेंट्स वो अपनी स्पीच को ख़त्म करते हैं. अगरचे ये बहुत लंबी स्पीच है और आप इसको जो है इंटरनेट पर यहाँ पर जो दिया गया है लिंक, वहाँ पर जाकर आप इंटरनेट से इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ भी सकते हैं. लेकिन जो छोटा सा टुकड़ा है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कायद आज़म के नज़दीक, वो अपने आखिर में जो है वो बता रहा है कि मेरे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे लाइफ के अंदर वो हैं फेयर प्ले एंड जस्टिस, कि मैं इंसाफ से और फेयर प्ले के साथ हर एक से चलूँगा, सब मेरे नज़दीक बराबर हैं. एंड ही ऑल्सो थैंक्स दैम. जैसा कि आप जब एक स्पीच को ख़त्म करते हैं तो आप कहते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम. मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता. एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी. अब देखें, फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी, कि वो इज़्ज़त जो कि आपने मुझे दी है. थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर द रिस्पेक्ट दैट यू हैव गिवन टू मी, फॉर द ऑनर दैट यू हैव डन टू मी. तो ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो कि आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. इसको आप प्रैक्टिस करें तो इट कैन आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज एज वेल. सो आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज प्रिजुडिस. प्रिजुडिस का मतलब होता है किसी खास जो है मजहब को, फिरके को या लोगों को या ग्रुप को जो है वो फेवर करना, उसके हक में जाना. तो कह रहे हैं कि मैं कोई भी प्रिजुडिस का मुजाहरा इस किस्म का नहीं करूंगा, ना ही कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज इस किस्म की, और ना ही कोई इल विल लोगों के खिलाफ रखूंगा. Everybody is equal to me. My guiding principle will be justice and complete impartiality. मेरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इंसाफ सबके साथ एक जैसा, और इम्पार्शियलिटी, मुकम्मल इम्पार्शियलिटी, एंटायर इम्पार्शियलिटी. इम्पार्शियलिटी मीन्स न्यूट्रलिटी, कि मैं किसी भी साइड को फेवर नहीं करूंगा. एंड आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड. आई कैन लुक फॉरवर्ड मीन्स मैं उम्मीद कर सकता हूं. और क्या मैं लुक फॉरवर्ड कर सकता हूं? टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम कौम बन जाएगी. So these are the most important ideas, students, that Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah has propounded, has presented in this speech. And what are the most important principles? That first of all, he reminds them about their duty, that you are the sovereign body and you have to make the Constitution of Pakistan, and you have to work as a sovereign legislature. So it actually imposes great responsibility upon you as well. और वो responsibility क्या है कि आपने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को मुकम्मल करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है इस कौम का फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है. एंड देन ही पॉइंट्स आउट द अदर ईवल्स दैट दे हैव टू फाइट, कि दूसरे और कौन कौन से ईवल्स हैं जिनसे उन्हें फाइट करना है. तो उसमें वो बता रहे हैं ब्रिबरी है, करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है, नेपोटिज्म है, जॉबरी है. तो दीज आर दी रियल ईवल्स और bad things that actually are prevailing in the society, and we have to deal with them iron hands. We have to deal with them relentlessly. कोई रहम नहीं आना चाहिए जब इस किस्म की बुराइयां देखें तो उनके खिलाफ इकदामात करने पर.
एंड ऑल्सो सो वी हैव टू टेक मेजर्स अगेंस्ट दैम। और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि आपने कॉन्सेंट्रेट करना है पाकिस्तानी अवाम की भलाई पर। और अवाम की भलाई और वेलबींग किस चीज़ में है कि उनको अच्छी सेहत की सहूलतें हासिल हों, अच्छी तालीम की सहूलतें हासिल हों, अच्छी जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको हासिल हों, और जस्टिस हो सोसाइटी के अंदर, और सबकी इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन and with the caste and with the creed of people. Simply the every citizen of a country is equal to the state के लिए जो है सारे सिटीजन बराबर हैं, और लिहाजा जो प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सबके जो कि आइन वाजे करेगा वो इक्वल होंगे। और उसके बाद जो वो कह रहा है कि यू हैव टू बरी हैचेट्स, तो आपको इस तरीके से एक नया सोचने का अंदाज जो है आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। एंड ऑल्सो ही पॉइंट्स आउट दैट फाइनली बिजनेस ऑफ द स्टेट, तो मैंने आपको बता दिया कि फेयर प्ले एंड न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शलिटी आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ माई लाइफ। और इस तरीके से वो बता रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं या सियासतदान हैं उनको भी, कि आपको भी जो है इन्हीं प्रिंसिपल्स को सामने रखना है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।